Hello, good morning friends. How are you? We are welcome all of you. Myself, Jatin Dave from Ashapura School. Today we are going to learn in 10th Science, chapter number 2, acids, base and salts. Our continued topic is how strong are acid and base solution. Yesterday's we are going to learn two main points. First one, what is the universal indicator? So please remember once again, what is the universal indicator? It is a mixture of several indicators. It is a, please see the board carefully. It is a mixture of several indicators. It is used to know the quantitatively the amount of H plus or OH ion present in a solution. It shows different colors at a different concentration of H plus और OH minus ion solution. यहाँ पर तीन important बात है, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ. What is the universal indicator? A mixture of several indicators. अलग अलग इंडिकेटरों का मिक्सचर यूज करते हुए यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है. सेकंड, इट इज यूज्ड टू नो द क्वांटिटेटिवली द अमाउंट ऑफ द H प्लस और OH आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है उस गिवन सॉल्यूशन में H प्लस आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन दैट मीन्स है कि हाइड्रोक्सी आयन किस कॉन्सेंट्रेशन में किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ये इसको डिटेक्ट करना है. और तीसरी बात, इट शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन. तो वो किस तरह से हमारे सामने इंडिकेशन देता है? वो इंडिकेशन देता है चेंज ऑफ द कलर्स के द्वारा. डिफरेंट कलर्स वो शो करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में. तो ये है इंडिकेटर एंड हाउ इट इज वर्क टू इंडिकेट द सॉल्यूशन आर बेसिक और इन एसिडिक इन नेचर. दूसरी बात जो हमने देखी थी वो थी pH स्केल के बारे में. जो हमने दूसरी बात देखी थी वो थी pH स्केल. व्हाट इज अ pH स्केल? डू यू नो व्हाट इज द pH स्केल? ओके, so listen to me. What is a pH scale? So first one, a definition of the pH scale, a scale for measuring H plus ion concentration in a solution. ये एक स्केल है जो मेजर करता है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर. मीन्स क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन और पावर ऑफ H प्लस आयन कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितना है इसका मेजरमेंट pH स्केल करता है. वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 10 ऑन द pH स्केल. यहाँ पर pH स्केल है वो इंडिकेशन के लिए हमें कोई एक फिगर देता है जो फिगर 0 से लेकर 14 तक का होता है. 0 is shows the very acidic in nature. 0 is shows the very acidic in a nature and 14 is shows the very basic or very alkali in nature. Third one, we can measure pH scale generally from 0 to 14. On the pH scale, the value less than 7 represent the acidic solution. Value if the greater than 7 then represent the basic solution in nature. And if we get exactly 7 value, that is represent the neutral solution. तो यहाँ पर भी 3 important बात हमें याद रखनी है. A scale for measuring H plus ion concentration in a solution is called the pH scale. We can measure pH generally from 0 to 14. And third one, on the pH scale, the value less than 7 represent acidic nature, greater than 7 represent the basic nature, and equal to 7 is represent the natural. Now, please open your textbook and see the page number 26. Now we are going to continue our topic, how strong are acid and base solution. So please see the page number 26. I can read the page and activity and you also read and listen carefully with me. So now let's performing activity number 2.11. Test the pH values of the solution given in table 2.2. यहाँ पर table 2.2 में
कुछ सैंपलिंग्स दिए गए हैं, उसके लिए हमें pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको एक के बाद एक pH पेपर का यूज़ करते हुए, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हुए एक के बाद एक सॉल्यूशन में डिपेंड करते जाना है, उसका कलर चेंजेस देखते जाना है, उस कलर चेंजेस को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। सो प्लीज once again open your notebook and take the pen and write the solution with observation. Table is serial number 1 to 10, यहाँ पर 10 सैम्पलिंग है। पहले वो सैम्पलिंग सॉल्यूशंस देख लें। पहला सॉल्यूशन है सलाइवा बिफोर द मील, मतलब कि खाने से पहले जो सलाइवा हमारे मुंह में उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उसे लेना है। एंड सलाइवा आफ्टर द मील, खाने के बाद जो हमारे मुंह में बनती है, उसको लेना है। थर्ड, लेमन जूस। फोर्थ, कलरलेस एरेटेटेड ड्रिंक्स, कोई भी कलरलेस ड्रिंक्स लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स लेना है। कैरेट जूस बनाना है। कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, मतलब कि हमारे नल में जो पानी आता है घर में, वो जिसका हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। और 1 मोलर NaOH एंड 1 मोलर HCl। ये 10 सैम्पलिंग है। जैसा कि मैंने कहा, केयरफुली लिसन टू मी एंड राइट डाउन ऑब्जर्वेशन विथ लिसनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखते हैं सलाइवा बिफोर द मील। यहाँ पर कलर ऑफ द pH पेपर जो मिलेगा वो लाइट ग्रीन कलर मिलेगा। प्लीज राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑन योर नोटबुक। जो कलर मिलेगा वो लाइट ग्रीन मिलेगा और अप्रॉक्सीमेट इसका pH वैल्यू होगा 7.4। अभी हमने देखा कि अगर जो ग्रेटर देन 7 रिप्रेजेंट होता है pH स्केल पर, तो वो बेसिक नेचर दिखाता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो बेसिक होगा। दूसरा है सलाइवा आफ्टर मिल्क, खाने के बाद। यहाँ पर लाइट येलो कलर आपको मिलेगा, लाइट येलो कलर pH पेपर का मिलेगा और इसका अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू होगा 5.8। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 5.8 और ये किस तरफ जा रहा है? लेस देन 7 की तरफ जा रहा है, मतलब कि एसिडिक इन नेचर रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वन है लेमन जूस। लेमन जूस आपको pH पेपर के साथ पिंक रेड कलर देगा, पिंक रेड कलर। अप्रॉक्सीमेट इसका pH स्केल होगा 2.5, नेचुरली एसिडिक इन नेचर बनेगा। कलरलेस एरेटेटेड ड्रिंक्स आपको लाइट येलो कलर देगा और लाइट येलो कलर देगा, इसका pH स्केल होगा अप्रॉक्सीमेट 6 और एसिडिक नेचर बनेगा। कैरेट जूस है वो आपको लाइट ऑरेंज कलर देगा। कैरेट आपने देखा है कौन से कलर का होता है, इसका जूस बनाते हुए लाइट ऑरेंज कलर वो pH पेपर के साथ देगा, जिसकी pH वैल्यू होगी 4.0, वो भी एसिडिक इन नेचर आपको मिलेगी। कॉफ़ी के साथ pH पेपर ऑरेंज कलर देगा, आपको ऑरेंज कलर देगा और इसकी वैल्यू होगी 5.0 अप्रोक्सीमेटली, ये भी एसिडिक इन नेचर मिलेगा। टोमेटो जूस के साथ आपको मिलेगा, यहाँ पर टोमेटो जूस का यूज़ करते हुए जो कलर्स आपको मिलने वाला है वो है रेड कलर या फिर डार्क रेड कलर मिलेगा आपको। 4.1 इसका pH होगा और एसिडिक नेचर। टैप वाटर आपको ग्रीन कलर देगा, टैप वाटर ग्रीन कलर देगा जिसका pH है 7, मतलब कि ये इस तरीके का है, रिप्रेजेंट द न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो टैप वाटर है जो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर के एज ए ड्रिंकिंग वाटर या फिर डोमेस्टिक यूजेस के लिए आता है, वो जनरली इक्वल टू 7 pH स्केल वाला होना चाहिए और इस तरह से ये एसिडिक या बेसिक ना होकर न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 मोलर NaOH आपको डार्क येलो कलर देगा और इसका pH होगा अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 के बीच में और ये बेसिक नेचर प्रोड्यूस करता है। और 1 मोलर HCl रेड कलर देता है और इसका वैल्यू pH वैल्यू है 1, जो एसिडिक इन नेचर प्रोड्यूस करता है। फिगर नंबर 2.7 में देखिए, यहाँ पर आपको pH ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन द pH पेपर दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस जिसका pH होता है 1, एसिडिक इन नेचर होता है। लेमन जूस जिसका pH होता है अबाउट 2.2 समथिंग
इसका भी कलर इंडिकेशन आप देख सकते हैं, हमने भी आगे बात की, पिंक रेड इन कलर देखने को मिलेगा। प्योर वाटर या फिर ब्लड जो हमारा है वो एग्जैक्टली 7 pH वैल्यू है और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका pH 10 मिलता है, ये बेसिक नेचर है। एंड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका pH अप्रोक्सीमेट 14 के जितना होता है, जो बेसिक नेचर इंडिकेट करता है। चलो कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ देखनी है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, तो अगर जो आपको इसका स्ट्रेंथ देखना है तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इफ वी टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड or acetic acid, the some concentrations say 1 molar, then they produce different amounts of hydrogen ions. सैंपल ऑफ एसिड अगर जो हम ले रहे हैं, जैसे कि HCl है, और दूसरा ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और अगर जो pH स्केल पर इसका मेजरमेंट करते हैं तो देखने को मिलता है कि दोनों का pH स्केल डिफरेंट आ रहा है। ओके, दोनों एसिडिक नेचर है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन डिफर देखने को मिल रहे हैं, जिसके आधार पर कलर डिफरेंट मिलेगा और साथ में उसका pH स्केल भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से एसिड दैट गिव्स द राइज इज मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कंपैरेटिवली लो है उसे हम बोलेंगे वीक एसिड, इसे हम बोलेंगे वीक एसिड। ठीक उसी तरह से बेसिक में है, अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन का प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि NaOH की अभी हमने बात की, जिसका अप्रोक्सीमेट pH स्केल 14 तक देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ। और अगर जो कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH- आयन कम हो जाते हैं, लेकिन किस लिमिट के अंदर, 7 to 14 के लिमिट के बीच में, तो ये बेसिकली हम कहेंगे कि वीक बेस हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सो कंक्लूजन कंप्लीट करते हुए, एसिड दैट गिव्स द राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट गिव्स लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। नाउ कैन यू नो से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? तो इस वीडियो के लास्ट में फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं पॉइंट्स, सो प्लीज लेट्स सी द बोर्ड एंड हियर वी रिप्रेजेंट व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, what is a strong base and weak base. So please look here. First one, what is a strong acid? Acid which produce H+ ion in more quantity in water. Acid which produce H+ ion in a more quantity in water is called the strong acid. For example, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, HCl hydrochloric acid. What is a weak acid? Acid which produce H+ ion is less quantity in water is called the weak acid. तो जहाँ पर आपको मोर क्वांटिटी देखने को मिल रही है वहाँ पर कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी हो जाने से ये वीक एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिंक कलर से दिखाया गया है HCOOH फॉर्मिक एसिड। लिसन केयरफुली, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH acetic acid, HCN is called the hydrogen cyanide. HCN is called the hydrogen cyanide. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, weak acid, example of the weak acid, HCOOH formic acid, CH3COOH acetic acid, HCN is called the hydrogen cyanide. Now base which produce OH ions is a more quantity in a water is called the strong base. For example, NaOH, KOH and COH twice. NaOH, that means sodium hydroxide, KOH means potassium hydroxide, and CaOH2 means calcium hydroxide. What is a weak base? Base which produce OH ions in less quantity in water, comparatively less quantity in water, is called the
weak base. For example, here once again please show the pink colors with the example of weak base are NH3, NH4OH, etc. NH3 means ammonia, NH4OH means ammonium hydroxide. So here we discuss our point 2.3. Point is how strong are acid and base solution. Here we discuss three important questions. One of all is what is the universal indicator and what is the function of universal indicator. Second question is the short note of pH scale, and third short question is what is a strong acid and weak acid. Give its example. What is a strong base and a weak base. Give with the example. तो यहाँ पर हमारा इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. I hope so you understand very well and you listen and understand very carefully. Now it's a time for your revision. Please revise all the topic, all the question with the point of view of exam, and we will come tomorrow with our next topic related with the how strong are acid and base. Topic is the importance of the pH in our day-to-day life. Okay, and thank you.